after the show. Okay, okay, we'll do that. Hello, everyone. Good evening to everyone who is right now with us. We are really glad, we are really happy that we have Dr. Kafil Khan with us. As you all are aware, that for last 2 days, we are hosting people who are fighting for the democracy. Last day, we had Comrade Kareem and Comrade KK Ragesh, who are the Rajya Sabha MPs, who are suspended because they are speaking against the agriculture bill inside the parliament. They came and spoke that why it is important to defend with our everything this country that we call a democracy, this country that we call our motherland, our country. And continuing that series, we have our beloved Dr. Kafil Khan with us. We do not, I mean, he doesn't need a different introduction. We don't have to tell him, you don't have to tell people that who is Dr. Kafil Khan, why he is loved, and why he is called today. But what we thought while calling him, that at a time when there are multi-pronged attacks in democracy, everyone and anyone who speaks against the government, they are either termed as anti-national, or they are termed as terrorist, or they are termed as someone who is against this country. And among those people who have been witch hunted, we have seen during the Delhi, after the Delhi riot, all these people who are speaking against the CA, the activists, they were put behind the bar. And continuing that process only in Uttar Pradesh, Dr. Kafil Khan were also arrested, and a long time he was behind the bars. But after that, the court had to release him, had to give him the bail, because the police could not say anything concrete. Why a doctor who tried with his everything to save patients' life, to save children's life, need to be booked for something that he was hardly related to? The police could not prove anything. The police could not give any concrete evidence, and that's why you have Dr. Kafil Khan as a free man. And we hope that there are no time where he has to go behind the bars, because I think we need people like him. We need people like Comrade Ragesh. We need people like Umar Khalid, Safura Zagar, and all those people who have spoken against this autocratic regime with us on the streets fighting for the democracy. So, without taking much time from here, I will give this space to Dr. Kafil Khan to share his experience, to tell why he thinks that it is important to fight, why even after so much oppression he's not scared. As you can see, he's all smiling, and he looks so positive. What is the secret of it? How does he gather so much of courage? You'd like to know. And we'll also request people, if you want to ask something to Dr. Kafil Khan, you can put the questions here. We'll also like to ask some of the questions to Dr. Kafil Khan as well. Over to you. Hi everyone, this is Dr. Kafil Khan, twice suspended lecturer, BRD Medical College, Gorakhpur. I call myself twice because twice suspended because the government has suspended me 2 times. That's really something funny. Somebody is already suspended. How can you suspend him again? Anyhow, first of all, I want to thank you all the students of the Student Federation of India who took a protest against the injustice done to me and to the other students all over India. Thank you all. And as Deepishita said that I'm not scared because I get the energy, I get the zeal, I get the enthusiasm, I get my determination, I get my devotion from you guys only. You guys are the leader. I've seen the JNU student, Jamia student, and IIT Mumbai student. All these students have raised the real issues of India, and they have taken the fight ahead. And I just want to stand behind and walk along with you. So many people must be not knowing about me, and so many people may be knowing about me. So I will just introduce about myself. I was just a doctor before this 2017, August 2017, the oxygen tragedy, which killed around 70 innocent children in those 54 hours when there was no liquid oxygen. And the reason was because the supplier who was supplying liquid oxygen suddenly stopped oxygen because he wanted his dues. And his dues was not clear by the Uttar Pradesh government, some administrative officers who wanted 10% commission from him. Anyhow, I got a message at that night, and the kids are dying. As a doctor, as a father, I tried everything I could do.
And I'm telling you, I'm not a hero. I was not alone that night. There were 16 more junior doctors were there. There were sisters, ward boys, and supers. Everybody worked hard to save those kids. There were 400 kids, but still, we couldn't save around 63 kids. Uh, Media made me hero. Media made me again villain. And government didn't like, because they didn't. They thought that the whole thing had came to the public domain. It should not. Uh, Poor people, poor kids have died. Who cares? FIR was lost. I was in jail for 9 months, and I came out. During this first instinct of 9 months of my jail, I realized even after doing good work, you can be penalized. Even if you are a doctor, you can be penalized. Even if you have a good family and good background, can be penalized. So what will happening to those kids, who those people who doesn't have voice, who are really poor, who are very belongs to the marginalized community, a society. So I started speaking about them, and then I started touring all over India, because people love. I started asking me to come to them, and I visited all over India and conducted so many camps, around more than 100 camps we did in 1.5 years, and we examined around 50,000 kids. And during this time, I realized that BRD Oxygen tragedy was just a brutal face of our broken health system. Actually, the whole system is broken up. Now, 72% of the rural poor population doesn't have health access, especially the women's, the females. And the same time, when I was roaming this touring all over India, I was asking people, that, what do you expect from your government? What do you think your government should do? What is your requirement? You used to say that कि दो वक्त की रोटी मिल जाए, इज्जत की रोटी, अपना घर हो, और जब बच्चा बीमार हो जाए तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो, जब पढ़ने जाए तो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, वो भी JNU में पढ़े, वो भी IIT में पढ़े, वो भी एम्स में पढ़े, जब पढ़ लिख ले तो उसको नौकरी मिल जाए. I mean, they used to say that meal, food, housing, health, education, employment, all these six demand. And this demand is, I'm telling you, this is not today's demand, is already for the past 75 years we are asking, same demand, the common people of India. But what we are talking about, I saw that, the government, I won't talk about one government only, in different states, and especially this for the past 6 years, this regime, the politicians, they talk about the Teen Talaq, Halala, Naam Mandir, Babri Masjid, Shamshan, Kabristan, Ali, Bajrang Bali. So many things they do, but they don't talk about the real issues. See what farmers now, they have come to the street because everything has become, corporate driven industry, whether it's education, whether it's health, and now this is farming. Everything they're selling. So, as a responsible citizen of India, as a responsible uh, person, I started speaking about, and then I meet so many people, liberal people, and I saw students, they can really talk about the real issues, and they can do everything. So I started asking these questions in the public domain. Why you are not talking about health, education, and employment? Why there is so much division between the two individuals on the basis of caste, religion, region, social. Now you are from South India, you are from North India, you are Hindu, you are Muslim, you are poor, you are rich, you are this caste, you are this caste. So this thing is happening for the past, during the British regime also, and for the past 75 years also. They divide people to get votes, and divide people to get power. And I think, but the past 6 years, it has become more and more and more. Um, so
I think everybody, every individual has to come and stand up and speak up against this fascist regime. The way they are doing this, and I'm the one whose story has come to you, and whose story you know, because so many people have died, so many people are incarcerated for 10 years, 15 years, so many people, students are still behind the bar. If you remember this CA and RC and the protest, how many genuine Jamia students have been penalized and behind the bar. If you remember Bhima Koregaon the case, the 70, 80-year people old who are really socialists, who are really human right defenders, they are not getting bail. They are, for the past 2 years they are incarcerated when the whole world is, the whole India is battling with the COVID-19 pandemic. So the thing is that the four pillars of our democracy, the fraternity, the justice, the equality, the liberty, what we talk about, it's all four pillars are in danger. And this is your responsibility as a student. And you are the future of this India. You have to understand why they are hiding the real issue and bringing this is. I will tell you this one example. This time when I was in 8 months in jail, because the government slapped me with National Security Act. We'll talk about this order and everything. Just telling how in the jail we used to allow to watch TV for 1 hour news. And in that news hour, a particular channel was used to play. And this first 3 months, the channel was not talking about the COVID-19. I wanted to hear. They were talking about Muhammad Shah and Jamaat and how they're spreading. And then the time came that all 3 months they were playing Sushant Singh Rajput. So I in the jail, I never knew to, what's happening in the world, what is happening in the India, the immigration issue. So many millions of people have migrated from Kerala to Bihar, or Mumbai to Assam, walking in this scorching heat. They died on the way. They were hungry. They were, because somebody came at 8 o'clock and just announced this lockdown. I also advised, I also was in favor of lockdown, but not like that. You come at the Notbandi, I'd come 8 o'clock and just lock down the whole thing. Nowhere in the world during the lockdown so many people have suffered because of just one decision. If you talk about the COVID-19, I have a data now. We have got because of COVID-19 since January in India, around 90,000 every day 28,000 people are dying because of non-COVID disease, carcinomas, pregnancies, deliveries, pneumonia, diarrhea. 28,000 people every day, kids, women, men, so they're dying every day because our health system is overstretched, overburdened. But nobody is talking about this today. See, the farmers has to come on the street, the one who really provide food. The nationalism is not only the one, only the soldiers who fight on the border, the Jai Jawan and Jai Kisan Nara, and even those people who build our buildings, those people who build our roads, those people are who, like farmers, they are also soldiers. They are also not true nationalists. But we have to differentiate between the nationalism and pseudo-nationalism, Hinduism and pseudo-Hinduism. We have to differentiate between the fake news and the real issues. We have to differentiate between the WhatsApp university or whatever you know. You have heard about the rabbit hole theory, the tunnel vision, the glasses they give. The rabbit hole theory says that to a particular person, you show the same thing again and again and again and again for so many days, and the mind will become so blank, and your vision will become a tunnel vision, that you will see what when I am going to see, you will believe what I am going to say. So you will stop. That is a mind block. You will stop
thinking about the real issues. Okay, I will be hungry, I won't have a job. See, right now what is happening, the unemployment rate has gone to 40-50 years old, GDP has shrunk, economy has gone down, people have no job, people are hungry, people, protesting, but nobody is talking about that. China has intruded our country on Pakistan border. Every day one soldier is dying. So nobody is talk about now. Everybody is talk about the drug. Yeah. कपिल भाई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा हिंदी में भी बोलेंगे, तो जैसे हिंदी अंग्रेजी Okay, अगर मिला के बोलेंगे थोड़ा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे okay. हैं कि थोड़ा सा So what हिंदी I में। was saying कि जो हमारा रियल इशू है, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट का, उसकी बात कोई नहीं करता है। हर आदमी जो है शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहा है, अली बजरंग की बली की बात करते हैं, और 3 तलाक, हलाला, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। बट जो हमारे जो 70% ऑफ पॉपुलेशन है, उसको वो इग्नोर करते हैं उनके इशू। एजुकेशन सेक्टर की बात कर लें तो आपको एग्जांपल दूंगा, जेएनयू में जो हुआ था फीस का, जो आंदोलन, एजुकेशन फीस बढ़ाई गई थी, वो एक पार्ट है। वहाँ के स्टूडेंट अवेयर थे, दे प्रोटेस्टेड, बट यू नो व्हाट इज हैपनिंग टू आईएएम and other medical institutes to do a MBA in IIM. The fees is now 18.5 lakh rupees. So they are saying that they will sponsor, but Lal Salam, 18.5 lakh, and the same thing happening to the NEET. For medical education, the government has brought the audience that 50% of the medical seat in a private sector, the private sector, they can auction. So if you are giving a NEET, you want to become a doctor, अगर आपके 70% मार्क्स भी आते हैं, 70%, 80% मार्क्स भी आते हैं, और आपके पास पैसे नहीं है, तो शायद आप डॉक्टर नहीं बन पाए, अच्छी सीट आपको नहीं मिल पाए। बट इफ यू बिलोंग टू अ रिच फैमिली एंड यू हैव गॉट ओनली 20%, 20% मार्क्स पाया, 30% मार्क्स पाया, और आपके बाप के पास 1 करोड़ रुपए अगर देने को हैं, तो आपको अच्छी से अच्छी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। और एक मेडिकल कॉलेज की 1 साल की सीट जो फीस है वो 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीस पर ईयर कर दी गई है। वो भी ऑप्शन करते हैं, हो सकता है 25 लाख हो जाए, तो कहाँ से लाएगा? सो दिस इज द पॉलिसी टू deprive the particular society, the society. I am not talking about any particular community or religion. I am talking about the particular society who belongs to the poor socio-economic status. जो गरीब तबका है, जो मार्जिनाइज तबका है, उनको हायर एजुकेशन ना मिले, ये पॉलिसी है इनको रोक काट देने की। कॉर्पोरेट सेक्टर का हर जगह इंटरफेयर हो गया है। आपको हेल्थ सेक्टर आप देख लीजिए, कोई भी मंत्री और नेता, एनी पॉलिटिशियन, एनी ऑफिसर, कोई भी सिक होता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके एडमिट होता है, ठीक है ना। और अपना जो बच्चा, गरीब का बच्चा होगा, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा क्योंकि उसका पैसे नहीं है। आज कोविड-19 की हालत हो गई है कि one private hospital, one bed for COVID-19 is they're charging around 50,000 to 1 lakh per day. So from where the money, the poor people will come? And when we talk about India, even after 70 years, we don't have the right to equality, which is the basis of our constitution. हर को सबका समानता का अधिकार है। मतलब हमें चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी हिस्सेदारी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी रिलीजन का, किसी कास्ट का, किसी का उससे बिलोंग करता हो, दे शुड गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। बट व्हाट इज हैपनिंग? तो सेम थिंग इज हैपनिंग टू द फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अगर आप ऑडियंस को देखिएगा, अगर आप जाइएगा, तो मैं नाम नहीं लूंगा उस पर्टिकुलर कंपनी का, अभी उस पर्टिकुलर कंपनी ने करीब 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट उनको मिले हैं, और 12 लाख करोड़ का उनको इस लॉकडाउन में स्टॉक मार्केट में फायदा हो गया है। उस कंपनी के फोन आपके पास हैं, उसने फेसबुक, ट्विटर सबसे जो है वो पैक कर लिया है। अब वो क्या करेंगे? जो मर्चेंट्स हैं, जो लोकल मर्चेंट्स हैं, वो आपकी सब्जी भी जो है आप बड़े बड़े स्टोर में बिकेगी, और एक दिन एक किसान एक मजबूर हो जाएगा
कि वो अपने खेत के जो अनाज है वो उनके चाहे मनमाने दाम में, कितनी भी बात कर ली जाए एमएसपी की, जब एक बेचारा किसान मजबूर हो जाएगा कि उसको बेचना है भैया 900 रुपए पर टन बेचना है उसको अपना गन्ना, तो वो उतने में ही बेच के उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। गवर्नमेंट सारे वादे करती है कि हम सब खरीदेंगे, हमारा सब कुछ रहेगा, बट जब बातें आएंगी रियल ग्राउंड लेवल पे तो सब चुप हो जाएंगे। तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी स्पोकन फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हो। बस मैं इतना चाहूंगा कि आई वाज सिंपल डॉक्टर 2017 से पहले। आई वाज जस्ट सिंपल डॉक्टर जो हॉस्पिटल जाता था, घर आता था। मैंने कभी जिंदगी में रियलाइज नहीं किया था कि इस अपने देश में इंसान को इंसान से बांटने की एक तरह से धर्म के नाम पे अफीम खिला के नौजवानों को इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है कि वो डॉक्टर को भी हिंदू और मुसलमान के फॉर्म में देखने लगेंगे। उस रात अगर मैं बच्चों को बचाने गया तो कभी नहीं सोचा ये हिंदू का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है। आई डिड माई ड्यूटी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो कपिल मिश्रा भी होता, डॉक्टर कपिल मिश्रा भी होता या डॉक्टर कपिल कुमार भी होता तो शायद वो वही करता। पर जो जो गवर्नमेंट थी उसने एक ऐसी चाल चली कि मुझे जब उन्होंने टारगेट किया और जब मेरा नाम जो है उन्होंने कहा, जब योगी जी ने कहा तू है डॉक्टर कपिल, तू सिलेंडर लाया था, तू सिलेंडर ला के तू सोचता हीरो बन जाएगा, देखता हूँ तुझे। उसके बाद जो है जो नैरेटिव जो चेंज हुआ, लोग भूल गए कि 70 बच्चे भी मरे थे, लोग भूल गए कि करप्शन हुआ था, लोग भूल गए कि सरकार ने पैसे नहीं दिए थे और मासूम बच्चे मर गए थे। लोग डॉक्टर कफील की आधे लोग जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर, आधे लोग जो है डॉक्टर कफील करने लगे, आधे लोग योगी जी करने लगे। लोग भूल गए उन बच्चों को कि हमारा माइंड इतना करप्ट हो चुका है। तो हमें स्टूडेंट्स, आप सबसे जो भी आप इसको देख रहे हो और हमारे साथ जुड़े हुए हो इस वक्त, और भी जितने भी हम मेरे लिए प्रोटेस्ट किया है और अभी भी जो बहुत से लोग हैं जेलों में उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो गलत नीतियां, उनको ये समझना होगा कि ये जो बेसिक इश्यूज हैं, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के ये अलग इश्यूज लाते हैं और आपको डिवाइड एंड रूल का जो नीति है उसको करते हैं। तो आप एज अ नौजवान जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे देश को नेक्स्ट वो चलाने वाला है, उनको ये समझना होगा कि हमारे देश क्या चाहता है, कैसे डेवलप होगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो वन थिंग इज देयर कि ऑलवेज स्पीक योर हार्ट व्हाटएवर इज कमिंग। कहते हैं ना कि आवाज सही होना चाहिए। यू हैव टू ट्रूथफुल टू योर हार्ट, डू व्हाटएवर योर हार्ट इज सेइंग एंड नेवर गेट स्कैर्ड। मैं किसी की भी आंख में आंख डाल के देख के बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कभी गलत नहीं किया है। तो ऑलवेज ट्रूथफुल टू योरसेल्फ और रिमेंबर कि जो आप जितना डरोगे वो उतना डराएंगे, आपको उतना ही डराएंगे। तो डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। बहुत बहुत ही अच्छा लगा। जैसे बहुत सारे सवाल आए हैं, हम सारे सवालों को नहीं ले रहे हैं, पर कुछ जो रिपीटेशन हुए हैं उनको हम बोल रहे हैं। एक तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो पूरा कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ है, उसमें ये जो मांग के स्वास्थ्य जो है वो यूनिवर्सलाइज होना चाहिए। हेल्थ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार का होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा विश्व में भी बहुत सारे जो बड़े देश थे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, उन्होंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको नेशनलाइज किया। क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हमें कोई पेंडेमिक को रोकना है तो स्वास्थ्य को सबके पास लेके जाना पड़ेगा, जो ट्रीटमेंट है उसको सबके पास लेके जाना पड़ेगा। और वहीं पे हम इंडिया पे देख रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे थे कि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल का एक दबदबा है, जिस तरीके से जो मेडिकल स्टूडेंट्स है उनका जो पढ़ाई है उसको महंगा कर दिया जा रहा है। तो इस पे अगर आप कुछ बोले कि कैसे एक हम यूनिवर्सलाइज हेल्थ सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं, एक ऐसा समाज जहाँ पे हर कोई, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो अच्छा स्वास्थ्य का जो परिसेवा है, जो सर्विसेज है वो ले सकता है। और उसके साथ साथ कैसे हमारा जो एक्सिस्टिंग जो सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, उस पर क्या सुधार आ सकता है। क्या हमें नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ानी चाहिए, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ानी चाहिए, इसलिए क्योंकि अब एक डॉक्टर है उसके साथ साथ एक एक्टिविस्ट है। अगर इसके बारे में आप बोले, क्योंकि ये बात बहुत बार आई है। WHO says कि every individual, every family should have a health facility, emergency health facility near his house or home
within a 2 to 3 kilometer within his house or home, within his periphery. Uh, 2 से 3 किलोमीटर पे आपको अपने घर के पास इमरजेंसी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छी से अच्छी मिलनी चाहिए। दैट WHO says. But if you go by on the periphery of India, the rural population, the primary health sector, even West Bengal also, the North India, the whole North India, South India में फिर भी बहुत अच्छी हालत है। North India, if you talk about Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal, the primary health center, which is the backbone of any health system, is in shambles. आपको यकीन नहीं होगा कि जो डॉक्टर और पेशेंट रेशियो आप दिल्ली आ जाओ तो 1:300 है, यानी एक डॉक्टर के ऊपर 300 लोगों को देखने की जिम्मेदारी है। बट इफ यू गो टू द रूरल पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट, एक डॉक्टर के ऊपर 51,000 यानी 51,000 पीपल लोगों को देखने की जिम्मेदारी है। तो दैट्स इज नॉट पॉसिबल। हमने जो है एक 25 लोगों की टीम बनाई थी हेल्थ एक्टिविस्ट की, and we started demanding about health for all campaign we started, and we started demanding to start right to health care should be passed in the Lok Sabha and Rajya Sabha, make a law what our Baba Sahab Ambedkar dreamed of कि हेल्थ जो है वो मौलिक अधिकार होना चाहिए। और you will be surprised to know that India is spending only less than 1% of GDP, and the whole world, even if you go to the Pakistan and Bangladesh and all these poor countries also, they are also spending 6 to 8%, 6% at least. So India is spending less than 1%, and all these developed countries, the China, the US, they are spending around 8% of their GDP on health. तो हेल्थ तो एक ऐसा इशू है जिसमें आपको फ्री और सबसे अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को तो पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर ने अब पूरी तरह से उसको कब्जा कर लिया है कहा जाए तो। आप अगर देखो तो एक मेट्रोज में जो है, आप कोलकाता की बात करें, हैदराबाद, दिल्ली, all these metros, they have big hospitals where you will get the tertiary care what we talk about. अगर किसी को कैंसर हो जाए, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हो जाए या किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसको मेट्रोज में जाना पड़ेगा। 500-400 किलोमीटर वॉक करके जाना, मतलब ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कीजिए तो वहाँ पे आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो हेल्थ फॉर हमारा ऑल जो हमने कैंपेन चलाया था उसको 1.5 साल हो गए, और उसमें 25 एमिनेंट जो है कुछ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ हेल्थ एक्टिविस्ट थे, एंड वी डिमांडेड कि जो है एटलीस्ट इंडिया शुड स्पेंड 3% ऑफ GDP, और प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ सेक्टर को अपने हाथ में ले। राइट टू हेल्थ हो, जिस तरह से राइट टू एजुकेशन पास किया गया है, एंड एवरी इंडिविजुअल शुड हैव हेल्थ फैसिलिटी नियर देयर होम। तो ये हमारी डिमांड थी, और इसको एक बेसिक इशू बना के हमें करना चाहिए था। आप कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 90,000 पीपल हैव डाइड, बट 28,000 लोग रोज मर रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी नहीं, आप किसी जब हॉस्पिटल में जा रहे हो तो कहा जा रहा है नहीं पहले आप कोविड-19 कराओ टेस्ट, और आपको जो है एडमिट नहीं कर रहे हैं। बच्चे जो हैं घर पे मर जा रहे हैं, माँ मर जा रही है, जो प्रेग्नेंट लेडी है मर जा रही है, जिनको कार्सिनोमा कैंसर हो रहा है, उनका जांच नहीं हो पा रही है, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसको हार्ट अटैक आ रहा है वो मर जा रहा है, जिसका एक्सीडेंट हो जा रहा है वो मर जा रहा है। तो ये सारे जो नॉन कोविड, जिसको निमोनिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है, ये सारी बीमारियां खत्म तो नहीं ना हो गई हैं। कोरोना आ गया तो बाकी बीमारियां तो खत्म तो नहीं हुई। अब हो रहा क्या कि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना ओवरबर्डन, ओवर स्ट्रेच हो चुका है कि बाकी बीमारियों को इग्नोर किया जा रहा है, उसकी वजह से ज्यादा डेथ हो रही है, उसकी वजह से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। तो हेल्थ ऐसा इशू है कि it should be free, it should be available and to everyone, to every Indian citizen, irrespective of their caste, region, religion, socio-economic status and disabilities. I can't hear. Can you hear me?
Sorry, I'm really sorry. Can you hear me? I can't Oh, hear. my mic was muted. नहीं आपका Okay, प्रॉब्लम नहीं okay, था, मेरा माइक म्यूट था तो इसीलिए। I'm sorry, can you sorry. hear me? नहीं एक सब, yeah, I can hear you. I can hear you. Okay. Huh. So one question that many people also ask, that of course, as you were telling, that you did your duty as a doctor, where you tried to save the children. But how you were witch hunted or how you were put behind the bars, that had to do a lot with your identity. The fact that you're a Muslim, the reason why the UP government thought that you should be put behind bars had to do with your identity as an Indian Muslim. And the similarly हम देखे कि जब ये CA NRC वाला बात हुआ, उसके बाद भी जैसे आपको टारगेट किया गया, उस पे भी कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार विश्वास करती है कि ये देश जो होगा ये हिंदू हिंदुस्तान, इस तरीके का उनका एक सोच है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस हिंदू का ये देश होगा, कोई भी जो गैर हिंदू हो, अगर वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनका इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। तो जिस तरीके से दोबारा आपको जेल के अंदर रखा गया, उसके अंदर भी आपका ये जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है, उसका एक बहुत बड़ा रोल था। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा बोले कि जैसे हमने पिछले 10 सालों में देखा है, द वे दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टारगेट a certain community, the way they're trying to say that this country is only going to be of a certain community, of a majority community. How do you see it? How we can fight it? What is the way forward? See, मैं बस इतना कहूँगा कि किसी सामने वाला जब मैं बीआरडी से ही बाहर निकला था तो मुझसे बार बार पूछा था डॉक्टर कफील खान, आपको योगी जी ने इसलिए आपको टारगेट किया कि आप खान थे, मुसलमान थे। तो मैंने उस वक्त भी यही जवाब दिया था, नहीं, योगी जी तब भी यही करते, चाहे वो कपिल मिश्रा होता चाहे कपिल कुमार था, क्योंकि उनको अपने लोगों को, जो हेल्थ मिनिस्टर उस वक्त जो कमीशन ले रहे थे, उनको बचाना था। बट ओनली थिंग इज दैट व्हेन इट कम्स डॉक्टर कफील खान, it is easy to buy the story. I will give you an example. आपने जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार और उमर खालिद का नाम सुना होगा। लोगों ने कहा कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद पाकिस्तान गए थे और इंडिया के खिलाफ, इंडिया को तोड़ने के लिए, ये आरोप लगाया गया। पर किसी ने ये नहीं माना कि कन्हैया कुमार गया होगा, उमर खालिद जरूर गया होगा, ठीक है ना। और बहुत लोग अभी भी उमर खालिद को पाकिस्तान, वो कश्मीरी मानते हैं, उसके दाढ़ी पे रख के, और उसको जो है मतलब उसको तो the story is easy to buy. People will start believing the whole thing. I told you ना कि 11th and 12th of August everybody was saying डॉक्टर कफील मसीहा है, टीवी पे हर जगह ये चल रहा था। और 13 तारीख को जब योगी जी ने मुझे टारगेट कर दिया तो उसके बाद द होल नैरेटिव चेंज। पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट द कि 10-70 बच्चे भी मर गए थे और जो है करप्शन हुआ था। तो ऐसा आपको इस बार बता दूं कि जब मुझे एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने 29 जनवरी को पकड़ा मुझे, तो they should have handed over to the prison next day or after 2 days, but 3 दिन तक मुझे उन्होंने अपने पास रखा और बहुत मारा। मतलब मैं I would say कि they slapped me, they abused me, they made me naked, they beaten me with a stick and rod, and they didn't provide any food, no water. So they tortured me a lot physically. They wanted to break me, and they were asking so many weird questions. कि आप जो हैं, आपने you have invented some powder which can kill millions of people. आप विदेश गए थे सरकार को गिराने के लिए। एक्चुअली उन्होंने जापान का नाम लिया, जब आप जापान गए थे सरकार, हमने कहा जापान क्यों कह रहे हो, पाकिस्तान बोल दो। So the government wanted me to paint it as a communal person, anti-nationalist, और इसी वजह से इन्होंने अलीगढ़ की स्पीच को इन्फ्लेमेटरी और एनमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स बता के मुझे जेल भेजा, और मुझे फिजिकली बैकग्राउंड में मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करके मुझे ब्रेक करने की कोशिश की। आपको बता दूं पिछला, और मैंने 300 स्पीच दी एंटी सीए, एंटी एनआरसी, एंटी एनपीआर पे, क्योंकि मेरा अपना ये मानना था कि सीए फाइन, तुमने जो है 6 धर्म को ले लिया और 3 कंट्रीज को ले लिया, पर आपने जो है, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी पे, रिलीजन पे हम नहीं बात करेंगे, उसको आपने एक तरह से हमला करने की कोशिश की है।
आपने उन तमिलियन को क्यों भूल गए जो श्रीलंका से तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में आके बसे? उन बुद्धिस्ट को क्यों भूल गए जो बेचारे तिब्बत से आके यहाँ बसे हुए हैं या भूटान से आए? उन हिंदूज को क्यों भूल गए जो नेपाल से आए? और सिर्फ दुनिया में 6 और 7 धर्म नहीं है, हजारों धर्म है, ठीक है ना, और हजारों कंट्रीज हैं। तो आपने उस सब कंट्रीज को क्यों भूल गए? उन देशों और उन रिलीजन को क्यों भूल गए? उसके अलावा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, आफ्टर सीए एनपीआर विल कम एंड देन एनआरसी विल कम. We have seen what happened when NRC was applied in Assam. 18 lakh people have been deprived of citizenship, and those 18 lakh people were not belong to one particular community. No, they were belong to the poor socio-economic status. The गरीब थे, बस वो इतना समझ लो. उनकी कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था. वो बेचारे इसलिए कि उनके पास पेपर नहीं था, कागजात नहीं थे, उनको जो है डिटेंशन कैंप में भेजने की कोशिश की. वो पिछले 75 सालों से देश में रह रहे थे. उनको एक बार अचानक ही बता दिया गया कि आपका देश आपका नहीं है. You know, religion and nationality comes since birth. मैं मुसलमान हूँ क्योंकि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ. उसके बाद मैंने जब बड़ा हुआ तो अल्लाह के बारे में समझा, and I started believing कि yes, I love Allah. But that is my personal choice. I believe in Allah, but I don't discriminate on the basis of anyone, on the basis of religion. The same thing which comes with nationality. मैं भारत में पैदा हुआ हूँ तो मैं भारत से प्यार करता हूँ. ये देश मेरा भी उतना ही है जितना आपका है. और यही मैंने अपनी स्पीच में कहा था. तो मैंने 300 स्पीच दी ऑल ओवर इंडिया, मतलब तमिलनाडु से लेके आपके कोलकाता और छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार और एवरीवेयर. किसी भी गवर्नमेंट ने कोई एफआईआर नहीं किया, क्योंकि कभी मैं ऐसी बात ही नहीं करता था. क्योंकि मेरा अपना बचपन से मानना, मेरे घर में सिखाया गया कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा. तो जब ये थिंक ही नहीं थी तो मेरे मुंह से कभी कैसे निकलता ये बात. लेकिन उन्होंने, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट आप पढ़ोगे तो द कोर्ट हैज क्लियरली सेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ इलाहाबाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अलीगढ़ हैज अ सेलेक्टिव अप्रोच टू दैट स्पीच. उन्होंने मेरी 45 मिनट की स्पीच को काट के 2 मिनट की स्पीच कर दिया और उसको जो है क्या कहते हैं भड़काऊ भाषण बता दिया, inflammatory speech. Even Allahabad High Court has said that it's not. Allahabad High Court has clearly said that that the speech was not about the hatred and violence. The speech was actually about the integrity and unity of Indian. So now the question you have asked कि आपका मुस्लिम आइडेंटिटी कफील होने का वो, तो इस ऑर्डर अगर नहीं आता और पिछले 7 जो महीना था, तो हालांकि मैं लकी था कि मेरे लिए बहुत प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में और बहुत लोगों ने मेरे लिए आवाज उठाई ऑल ओवर वर्ल्ड. बट बहुत से ऐसे लोग थे कि मुझे देशद्रोह ही मान रहे थे इस ऑर्डर आने से पहले. इस ऑर्डर आने से पहले बहुत से लोग मान रहे थे कि मेरी स्पीच गलत थी. इस ऑर्डर आने से पहले ये मान रहे थे कि उन्होंने पेंट कर दिया था. जो योगी गवर्नमेंट चाह रही थी कि इसे कम्युनल करार दिया जाए, इसे एक जो है एक अलग तरह से दर्शा दिया जाए कि ये देशद्रोही है, एंटी नेशनलिस्ट है, वो लोगों के दिमाग में था. तो एक ऑर्डर आने के बाद अब एक तरह से उन लोगों को एक जवाब मिला और वो लोगों को भी एहसास हुआ कि किस तरह से फासिस्ट रेजिम किसको भी किस तरह में पेंट कर सकती है. तो अब बस यही होता है कि लास्ट में यही कहूंगा कि इट इज वेरी सिंपल टू पेंट समवन when your name is Khan or your name is different, Dr. Kafil Khan, so it's easy to buy the story because people's mind have become scarred on basis of religion, especially the youth. We are spreading so much hatred. We have so much social media or the electronic media, TV also, so much hatred we have given to our younger generation that their mind has become blocked. They're thinking only on one vision that okay, मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कहूँगा, अपनी कम्युनिटी में बहुत
बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं नहीं ये करना है, ये करना है, ये करना है करते हैं। तो उन सबके लिए ये संदेश है कि देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं। रिलीजन इज समथिंग पर्सनल, और देश के लिए अपनी जो देशभक्ति है वो हर आदमी में होती है, और हर आदमी जब तक we won't come together और जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, और अपने देश के लिए इन चीजों को, जो छोटी चीजें हैं वो उनको भुला नहीं देंगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे कि आप बोल रहे थे कि जैसे आप बैटरी डाउन दीक्षा, आई विल जस्ट सी द ओके श्योर। I'm very sorry to the audience. बहुत सारे आप लोगों ने सवाल पूछे. You have asked many questions, but there are so many questions that maybe we won't be able to ask all the questions. Okay. हाँ. I'm sorry. जैसे कि आप नहीं it's okay. जैसे कि आप कह रहे थे कि जैसे आपका जो स्पीच है उसका एक छोटा सा जो पार्ट है उसको लेके उसको बोला गया कि प्रोवोकेटिव है, भड़काऊ है. But at the same time, we all have heard their ministers, Anurag Thakur telling के देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को. We all have seen that their MLAs coming and saying कि अगर ये यहाँ पे आप इसको क्लियर नहीं करेंगे हम अपने हाथ में कानून लेंगे. Exactly what you were telling, that it's very easy to convince people that if you're a Muslim, if you're someone with a Muslim name, you can be a terrorist. But even after the, some particular community, if they come with guns, if they come in gun in public, फोन चार्जर काम कर रहा है, फोन चार्जर. but even after that कि हो सकता है इसका कुछ मतलब ये एक आइसोलेटेड इवेंट है, पर कहीं पे भी जब हम देखते हैं कि someone from minority community, the witch hunt become easier. I'm not going to extend anymore. I think we have already taken a lot important precious time of Dr. Kapil. So we just last one question we are going to It's not about the particular community people is talking about Goli Maro Saloko. It's about particular people belonging to particular political ideology, Absolutely. मैं बता दूं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप योगी जी और मोदी जी का इतना विरोध क्यों करते हैं. तो मैं उनसे यही जवाब देता हूं कि ना मैं योगी जी का विरोध करता हूं, ना मैं मोदी जी का विरोध करता हूं. मैं उस आइडियोलॉजी का विरोध करता हूं जो 1925 से आप 90 साल हो जा रहे हैं, उनका सिर्फ यही एजेंडा है कि लोगों को डिवाइड कर दो, लोगों को, इंसान को ऑन द बेसिस का कि पहले कहो कि ये अमीर है, गरीब है, उसके बाद कहो कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, उसके बाद कहो कि ये दलित है, पिछड़ा है, उसके बाद कहो कि ये अति पिछड़ा है, महादलित है, उसके बाद ऐसे ही डिवाइड करो छोटे छोटे टुकड़ों में कि ये एक साथ ना आ सके, एक साथ संगठित ना हो सके. ये पंजाब का किसान है, ये हमारा यूपी का किसान आंदोलन नहीं करेगा, हमारा पंजाब और हरियाणा का किसान आंदोलन करेगा. तो ये इस तरह से डिवाइड करने की कोशिश की जाती है. तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं है, चाहे वो आप जिसका भी नाम दिया, हमारे यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर है, चाहे कोई भी हो. मैं तो बस इतना कहूंगा कि वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को जो बिलीव करते हैं उनको एक प्रोटेक्शन है. आई विल गिव एग्जांपल ऑफ मॉब लिंचिंग. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सो मेनी पीपल हैव बीन किल्ड. अब एक ऑर्गेनाइज्ड भीड़ आती है. I always called a mob lynching a organized crime. People have been trained for this. I believe कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें कैसे करना है. और वरना आप ये बताओ कि एक मर्डरर किसी को मारेगा, उसके बाद वीडियो बनाएगा और अपनी वीडियो मर्डर करते हुए उसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे और हर जगह सोशल मीडिया पे डालता है. क्यों उनको डर नहीं लगता कि उनको पुलिस पकड़ेगी? क्यों? क्योंकि वो जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उनको वो कहते हैं हमारे साहब तो खुश हो रहे हैं ना. तो मॉब लिंचिंग इज वन एग्जांपल वेयर trained people come and it's organized crime. They do it because they don't have fear of any law, because they have a protection from higher authority. So it's about protecting the particular people who believes in a particular ideology. So I request everyone to whoever watching कि कभी भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ कोई भावना मत रखना. हमेशा जो हमारी लड़ाई होनी चाहिए वो आइडियोलॉजी पे होनी चाहिए. हमारी जो
जो सोच है उसकी, जो अगर गलत सोच है उसके खिलाफ होनी चाहिए, ना किसी तो मैं पर्टिकुलर और इंडिविजुअल ज्यादा के खिलाफ होनी हाँ चाहिए, पर्टिकुलर हाँ कम्युनिटी के खिलाफ होनी मैं और ज्यादा बात को ना बढ़ाते हुए आखिरी सवाल के साथ आज का हमारा ये जो सेशन है इसको खत्म करेंगे. एज यू वर टेलिंग that today in the whole country we have seen for the last 2 days that the farmers are on the streets, and as you were telling that all these protests when they're organizing, it's not about a certain community. When the farmers on streets, there are Muslims in them, there are Sikhs in them, there are Hindu in them, and different caste and creed and class, everybody is together. They're together because at the end of the day it's a question of livelihood. अगर किसान के घर में खाना नहीं होगा तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, भूख उनका एक ही जैसा होगा, उनका अलग अलग कुछ रंग नहीं होगा. हमने देखा इसके कुछ दिन पहले जो युवा थे वो बेरोजगार थे, जो रोजगार की जो मांग है उसको लेके सड़क पे उतरे. उसमें भी कई धर्मों के लोग थे, कई जातों के लोग थे, कई भाषाओं के लोग थे. तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर हम सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के टाइम से देख रहे हैं एक नए तरीके की यूनिटी बन रही है. जैसे आपने कहा कि एक कुछ लोग हैं जिनका एक विचारधारा है जो देश को बांटना चाहते हैं, उनके खिलाफ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं. तो ये जो मतलब जो हम विश्वास करते हैं कि हम जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसके साथ साथ हम किसानों के भी साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ भी खड़े हैं, जिन लोगों के साथ उनके पहचान के कारण ऑपरेशन हो रहा है, जेल में डाला जा रहा है, उनका बात दबाया जा रहा है, उनके उनके भी साथ खड़े हैं. So this new unity. I think that it is we should thank BJP because BJP had given us many activists. People would have been remain in their own profession, but BJP made so many of us an activist. They made so many people come down to streets and organize. So if you just give a message that in the future how this people united, which is the essence of India, where people from different class and creed and religion will come together and will have a concrete fight and will lead a concrete struggle against this autocratic, fascist Hindutva regime. I think students have got this, and JNU is the leader in that, at least in raising the voices of the issues which hurt our India, the national issues, and then the whole all over India, the central universities, especially the students started participating in the protest, peaceful protest, and asking about the real issues which is really hurting our integrity and unity of India and the development of India. तो मैं बस स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि हमें जितने भी और बाकी जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी लिबरल लोग हैं, उनको आपकी तरफ हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी आपसे ही एनर्जी मिलती है, आपसे ही प्रेरणा मिलती है. किस तरह स्टूडेंट्स ने, शायद मैं बता दूं कि जानता भी नहीं कि ये चीजें इतनी चीजें होती है जितनी चीजें आपसे मैंने सीखी हैं. तो हमें आपको पे पूरा भरोसा है, बट ओनली थिंग इज दैट कि एवरीबडी, ऑल इन स्टूडेंट्स शुड रियलाइज दैट पढ़िए, यू शुड स्टडी अ लॉट. देखो, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन नेट एंड व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड ऑल, बट स्टिल मैं आज भी 6 से 8 घंटा जब भी टाइम मिलता है एक बुक लेके बैठ जाता हूँ, पढ़ता हूँ. So you should study what is going in the world. You should study in the what is going in the other part of India also. You should study your history also. कि हमारी जो है हिस्ट्री कैसे रही, कैसे लोगों ने आंदोलन किया. चाहे आप समझिए जेपी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन इंडिया में अगर हुआ है तो एंटी सीए एंटी एनआरसी पे हुआ है, और उस आंदोलन को स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको शायद, और मैंने देखे हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे इतने, दे आर रियली गुड स्पीकर, दे ऑरेटर, दैट यू वोंट बिलीव दैट कि मतलब वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं इंडिया को, और किस तरह से इंडिया के शेप को चेंज कर सकते हैं. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस कि यू शुड कम फॉरवर्ड, यू शुड बी यूनाइटेड एंड यू शुड speak up your mind, you should speak up your heart, never get scared, never get go by the flow, read, educate yourself and speak up. तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इंडिया को इस वक्त जो है स्टूडेंट्स लीडर्स जो हैं, स्टूडेंट्स लीडर्स ना कह लूं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट कह लूं, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो देश के, हमारे अपने देश को उस चाइना और यूएस से भी आगे ले जाना चाहते हैं, उनको
अब इस जो जाति, धर्म और जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जेंडर बायस है, कास्ट का, कभी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो है उत्पीड़न जो है दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का और माइनॉरिटीज का होता है। तो महिलाओं का रिस्पेक्ट भी करना बहुत जरूरी है। फीमेल का जो है कि मेरे अब्बू जान कहा करते थे कि जो है अगर तुम किसी और औरत की कभी भी बेइज्जत करोगे तो जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, और अगर जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो औरतों की इज्जत करना स्टार्ट करो। तो ये जो है ये जज्बा होना चाहिए। तो यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और रिलीजन और रीजन एनीथिंग। दूसरे कि अपने दिल को मानो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। अगर ये कहता है कि ये गलत काम है तो कभी भी मत करो, अगर ये दिल तुम्हारा कहता है कि ये काम करना है तो ऑलवेज डू दैट। सो मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा कि इस जुल्म के दौर में जुमा खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। तो यू हैव टू स्पीक अप। और पूरा देश जो है पूरा एक तरफ आपकी तरफ निगाहें उठा के देख रहा है। आप हमारे देश के फ्यूचर हो, हम आपके पीछे खड़ा होना चाहते हैं। और मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दूंगा। मैं कोलकाता में एसएफआई के ही एक प्रोग्राम में आपके साथ आया था और मैंने एक बात कही थी कि जो है नॉर्थ इंडिया में एक बहुत लोगों में उत्सुकता है कि हाउ डज सेफ्रॉन जो है वो वेस्ट बंगाल में कैसे इतना इंक्लूड कर गया है, बीजेपी 18 सीटें कैसे पा गई। तो मैंने मजाक में बोला था कि नॉर्थ इंडिया में एक बात चल रही है कि सेफ्रॉन हैज बिकम रेड। तो उस वक्त मुझे जो है कुछ लोगों ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, red is red only, Lal Salam is Lal Salam only thing is that some younger generation who has not attended the real the struggle of Lenin and Marxism theory, पढ़ा ही नहीं कभी मार्क्स को, कभी लेनिन कन्फ्यूशियस को पढ़ा ही नहीं, उनकी बातें ही नहीं समझी हैं, और बस सिर्फ इसलिए कि वो उस आइडियोलॉजी को जब तक आप मैंने पढ़ा और मुझे जहाँ तक समझ है कि कम्युनिस्ट की जो टीचिंग होती थी मार्क्स और लेनिन, और उनको पढ़ाया जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था, उनको ऐसे नहीं कि सबको सदस्यता दे दी जाती थी, उनको पहले अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बताया और समझाया जाता था। जब आप उस आइडियोलॉजी को समझोगे कि किस तरह से हमें जो है वर्क करना है, सिर्फ लाल सलाम कहने से काम नहीं चलेगा, और उसको जो बेस है आपका आइडियोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। तब तो कुछ जो लोग जो इस चीज को नहीं समझते थे, जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग नहीं थी, वही बिखरे हुए हैं। तो मेरा बस आपसे गुजारिश और निवेदन यही है कि रीड एंड रीड, स्टडी एंड बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर आइडियोलॉजी। जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, लीडर्स हैं, पास्ट हिस्ट्री है और जो हमें सिखाया गया है, अगर आप उस पर बिलीव करते हो, अपनी आइडियोलॉजी जो है, तो रेड विल ऑलवेज बिकम रेड, लाल सलाम हमेशा रहेगा, सेफ्रॉन कभी भी इंक्लूड नहीं कर पाएगा। शुक्रिया डॉक्टर काफी खान। आई थिंक साहब I saying I salute you my dear comrade सुनील सिन्हा साहब, थैंक यू। लाल सलाम। दलाल चौधरी साहब, संघर्ष के जुल्म जो है वो सबसे ज्यादा मुझे दुख जो है इस बात का होता है कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहे, और मैं एज अ बच्चों का डॉक्टर मुझे हमेशा जो है सिखाया जाता था कि जब तुम बाप बनोगे देन यू विल रियलाइज कि माइलस्टोन क्या होता है, तुम्हारा बच्चा कब पहली बार पापा बोला, कब पहली बार चला, कब पहली बार, तो वो मैं देख नहीं पाया। बट लोगों का इतना प्यार मिला मुझे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड से, वो प्यार जो है बहुत मुझे अपनी चीजों को, अपनी संघर्ष को वो आगे बढ़ाने में मदद करता है। बहुत सारी शुक्रिया। वन लास्ट, नहीं, श्योर। ऑलवेज रिमेम्बर कि डॉक्टर कफील की स्टोरी आपके पास पहुंच गई है, पर बहुत से ऐसे डॉक्टर कफील हैं जिनको मार दिया गया है, जो अभी भी जेल में हैं। बहुत से स्टूडेंट अभी भी जेल में हैं
जिनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी लॉ का दुरुपयोग करके, अभी मैंने यूनाइटेड नेशन को भी इस बारे में पूरा डिटेल लेटर लिखा है, और उनको भी याद करिए, उनको भी, उनके बारे में भी आवाज उठाइए। अभी भी बहुत से लोग जेल में सड़ रहे हैं। आपको डॉक्टर कफील इज जस्ट सिंबल ऑफ द बिगर डिजीज, द लार्जेस्ट डिजीज, जो बड़ी बीमारी है। आपको वो टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह जो थ्योरी है कि आपको कुछ ऊपर से दिखाई दे रहा है, नीचे बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो कम टुगेदर, स्टैंड अप एंड स्पीक अप। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सारी शुक्रिया आपको, आपने इतना अच्छा सेशन, और जब हम बात कर रहे थे ऐसा कभी लगा नहीं, मुझे लगता है ऑडियंस को भी ऐसा ही लगा होगा। इट डिडंट लुक लाइक कि हम पहली बार मिल रहे हैं, इट फेल्ड कि हम बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। हमें लगता है यही हमारी मूवमेंट की, हमारी जो गणतंत्र है उसका खूबसूरती है, इसलिए क्योंकि हम सब एक दूसरे से, इस देश के लिए जो मोहब्बत है, इस देश के लोगों के लिए जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, तो बहुत आसानी से हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। आपकी बहुत सारी शुक्रिया। और जैसे कि आप कह रहे थे, मैं जब आप जेल बात से कह रहे थे, बाहर आने के बाद मैंने सारे वीडियो देखे कि कैसे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टूडेंट जो है और मेरे लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मैं जो हूँ आपका आभारी हूँ। I know I am indebted, even my whole family is indebted to SFI. ये हमारी जिम्मेदारी है, और जिस तरीके से आपने याद दिलाया कि बस आपकी रिहाई या उमर की रिहाई से ये संघर्ष खत्म नहीं होता। जैसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जैसे जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, मॉब लिंचिंग है, इसके खिलाफ ठोस लड़ाई की जरूरत है। और उस लड़ाई में हम सब लोग एक साथ लड़ेंगे। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिफीट दिस ऑटोक्रेटिक रिजीम, क्योंकि भारतवर्ष में, मतलब भारत में कभी भी जो फैसीबाद है, जो तानाशाह है, ये आखिरी बात नहीं कहेगा। इसी इंस्पिरेशन के साथ आप हमें जिस तरीके से प्रेरणा देते हैं, उस प्रेरणा को लेते हुए जो बड़ा संघर्ष है, उस संघर्ष में हम एक साथ लड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की हमारी जो सेशन है, इसको हम खत्म करते हैं। बहुत सारी शुक्रिया डॉक्टर काफिल खान को हमारे साथ इतना सुंदर वक्त बिताने के लिए। शुक्रिया। लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, अरे हम इस मुल्क की मिट्टी को भी अपनी माँ कहते हैं। लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम तो इस मुल्क की मिट्टी को भी अपनी माँ कहते हैं। सुन ले हुक्मरान, सुन ले हुक्मरान, अगर तेरा बस नहीं चलता दंगाइयों पे, अगर तेरा बस नहीं चलता दंगाइयों पे, तो सुन ले हुक्मरान, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं। लाल सलाम, जय हिंद, जय भारत।